So, hello everyone, welcome to the PIB session of November. And starting with the first news, it is about the Employees Enrollment Scheme 2025. Okay, so the Ministry of Labor and Employment has launched a new scheme. The scheme is Employees Enrollment Scheme 2025 during the 73rd Foundation Day celebration of EPFO in New Delhi, right? And why it has been done to promote voluntary compliance, like to help employers follow EPF rules properly and to make sure that every eligible employees get social security. That's why it has been done under which act? Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. So under the scheme, it gives a 6-month chance, 6-month time period chance to add employees they forgot to register under the EPF between 2017 and 2025. The employees don't have to pay anything for the old period. It is just like a chance. उन्हें एक चांस दिया जा रहा है कि आपने अगर पहले अपने एम्प्लॉयज़ को एनरोल नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, आपके पास 6 मंथ पीरियड का टाइम है एंड द एम्प्लॉयज पे ओनली देयर शेयर्स. अभी उन्हें अगर वो एनरोल करेंगे तो अभी उन्हें सिर्फ खुद का शेयर देना है एंड अ स्मॉल 100 रुपीज पेनल्टी. No action will be taken against them and it will allow to increase the EPF coverage and help workers get social security. So this we have done. And what are the key provisions? See, no employee contribution is required for the declared past period if it was not deducted earlier, and employers must remit only their share of contribution. इन्हें सिर्फ अपना share of contribution देना है. Then a lump sum penalty of ₹100 per establishment will be given. Establishment with ongoing proceedings under Section 7A, Para 26B, Para 8 of EPS 1995 are also eligible with penal damages capped at ₹100. And no suo motu compliance will be taken by EPFO against employers who avail this scheme in good faith. Okay, अगर आप पहले ही यहाँ पे employers पहले ही आके अपनी गलती accept कर लेंगे कि हाँ हमने पहले नहीं किया, किस reason से नहीं किया, तो अब हम enroll कर रहे हैं, then no action will be taken against them. Next is integrated SDG and integrated SDG. Just a second. Integrated SDG, ESG, CSR alignment framework. What it is supposed to do? See, पहले क्या होता था कि अगर एक स्टेट को रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन तो वो एसडीजी गोल में होता था. एक कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता था अपने कार्बन एमिशंस के बारे में, या फिर कोई और कंपनी है जो अपनी सीएसआर मनी स्पेंड कर रही है ऑन प्लांटिंग ट्रीज. इसके लिए पहले सेपरेट सेपरेट फ्रेमवर्क थे. तो ये 3 सेपरेट चीजें थी, बट अब इस फ्रेमवर्क के साथ, दैट इज एसडीजी, ईएसजी, सीएसआर अलाइनमेंट फ्रेमवर्क, द न्यू फ्रेमवर्क विल लिंक ऑल 3, सो ऑल एफर्ट्स मूव इन वन डायरेक्शन एंड नॉट रैंडमली. ठीक है, तो मॉस्पी जो है और आईआईसीसीए, that is Indian Institute of Corporate Affairs, are creating a unified system to align SDG goals of the country with ECG reporting of companies and CSR spending. They will make development efforts towards what? Viksit Bharat 2047, right? So what is the framework is all about? This collaboration aims to develop a comprehensive SDG alignment framework that integrates the national, state and ESG indicators. Objective is very simple: to harmonize and to move the efforts of these of 3 different areas in one direction, and it seeks to bridge national, state and cooperative sustainability framework. Now, what is the role of National Indicator Framework here? To track India's Sustainable Development Goal progress. This is the role of NIF. It acts as the primary tool to monitor India's progress on SDG, and it will serve as the foundation for this project. Now, building on NIF, the collaboration aims to develop an integrated structure that aligns with what? First, the state level indicators, कि state के level पे क्या indicators है, ESG compliance and reporting जो businesses को करनी है, then CSR investment with SDG linked development outcomes. Okay, and next is this harmonization will create the state indicator framework, which is what? That every state will align with the national SDG target. ठीक है, तो state के जो targets हैं और जो nation के जो targets हैं वो aligned होने चाहिए. Next is National Beekeeping and Honey Mission. National Beekeeping and Honey Mission, that this mission is the central sector scheme launched to promote what? Scientific beekeeping. Okay, scientific beekeeping and increase the production of high quality honey. High quality honey हमें यहाँ
प्रोडक्शन उसका इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है अंडर द स्वीट रेवोल्यूशन, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, राइट. So what is there? It is implemented through a national bee board. National bee board के through ये implement होगा, and the original budget of rupees 500 crore is there for financial year 2021 till 2020 to 23. But now it has been extended for financial year 23-24 till 25-26, and the approved outlay is now 370 crore. Okay, the extended outlay. Now, what are the structures and component of NBHM? We have three mini mission. Mission 1. This is mission 1 that focuses on production. So it promotes the scientific beekeeping and improve the crop productivity through pollination. Pollination के through यहाँ पे productivity increase हो रही है. Then next is mini mission 2, which focuses on improving the honey collection. Honey को कैसे collect करना है, process करना है, store करना है. So it will help in marketing and processing of honey. Then next, mini mission 3. We have mini mission 3 that targets research and technology. जो भी research है, technology है, उसमें ये help करेगा, supporting research and enabling new technologies. So what are the key objectives that NBHM seeks? The first one is promote holistic development of the beekeeping. जो farmers हैं, अगर वो beekeeping कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि what is the scientific way. अगर उनके पास 5 beekeeping के लिए जो हैं उनके पास tools हैं, या फिर जहाँ पे वो इसकी बी कीपिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता कि साइंटिफिकली कैसे मैनेज करना है, तो उनकी इनकम क्या है, डिक्रीज हो सकती है, या फिर एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन प्रोडक्टिविटी. देन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश मॉडर्न टेस्टिंग लेबोरेटरीज की हनी किस क्वालिटी का है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को पास कर रहा है कि नहीं. देन डेवलप अ ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम एंड अदर IT enabled टूल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी. तो ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू डेवलप ब्लॉकचेन टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड traceability of the system. Then create honey corridors. Honey corridors create करना है. Why? To promote all the agri startups and agri entrepreneurs जो इस field में है, that is related to honey. Then facilitate partnership between beekeepers, processors and exporters. Why? To improve the market linkage. जितना ज़्यादा इनके बीच में linkage होगा, उतना ज़्यादा efficiency होगी, and it will help in exporting. Next is build technical capacity through training, skill development and dissemination. Empower women and self-help group through beekeeping. तो women empowerment भी एक objective है under this. Support collective institutions such as SHGs, FPOs and cooperatives and federations. Now अगर हम बात करें export of natural honey, सो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 1.07 लाख MT हनी एक्सपोर्टेड टिल नाउ. ठीक है, तो इसमें से जो मेजर इंडियन स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज यूपी, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार एंड राजस्थान. एंड द मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ये एक्सपोर्ट मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, बट मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं. वी हैव UAE, सऊदी अरेबिया, कतर एंड लीबिया. Okay, these are the major exporting destinations. Then India is also the second largest exporter. After which country? China. And India is second. Okay, then next is नीति आयोग for agriculture and frontier technology. Now ये जो नीति आयोग का ये जो एग्रीकल्चर एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, इट एक्सप्लेन की जो कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है इंडियन एग्रीकल्चर को. सो इट इज लाइक अ रोड मैप फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी. इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडियन फार्मिंग, मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव, मेकिंग इट मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स एंड हेल्प देम इन इंक्रीजिंग देयर इनकम. So it focuses on it gives customized solution for 3 farmer groups. ठीक है, 3 farmer groups के लिए customized solution देती है, and it aims to make farming more productive. ये इसका एक छोटा सा objective है. Then what about the roadmap? यहाँ पे है क्या? It focuses on using new technologies. कैसी technologies जो climate resilient हो, ठीक है, जिससे फार्मर को नुकसान ना हो अपनी प्रोड्यूस में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर हो, डिजिटल ट्विंस लाइक AI ड्रिवन एडवाइजरी, बेटर मैकेनिज्म. और ये 3 फार्मर्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? वी हैव एस्पायरिंग, ट्रांजिशनिंग एंड एडवांस. 3 टाइप ऑफ फार्मर्स, एस्पायरिंग, ट्रांजिशन एंड एडवांस. एस्पायरिंग मतलब जो स्मॉल हैं या रिसोर्स पुअर हैं, ट्रांजिशनिंग मतलब जो मॉडरेट इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम फार्मिंग, एंड एडवांस वो हैं जो कमर्शियल हैं, टेक ड्रिवन हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं अपने फार्म्स में. राइट, नेक्स्ट इज GST रेवेन्यू कलेक्शन October 2025. So as you can see in GST collection we have revenue for October 2025. It stood at
1,95,936 करोड़। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, या तो अमाउंट पूछेंगे या इंक्रीज पूछेंगे या रीजन पूछेंगे। इंक्रीज है 4.6% कंपेयर टू 187,346 इन अक्टूबर 2024। तो लास्ट ईयर के अक्टूबर से हमने यहाँ कंपेयर किया है। रीजन इज सिंपल, द फेस्टिव डिमांड एंड द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द रीजन फॉर दिस। ऑन ईयरली बेसिस अगर देखें तो जीएसटी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है बाय 7.8%। मंथली ग्रॉस डोमेस्टिक जीएसटी जो है ये भी रिकॉर्ड हुआ है एट 2% ग्रोथ। एंड इन एडिशन जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू है फ्रॉम इंपोर्ट्स पोस्टेड से जो आया है दैट इज रोबस्ट अराउंड 12.9 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इंडिकेटिंग व्हाट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल ट्रेड एक्टिविटी एंड राइजिंग इंपोर्ट डिमांड्स। नेक्स्ट स्कीम इज अबाउट रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, जो आपकी आरडीआई स्कीम है। सो इंडिया क्या है, यूजुअली स्पेंड करती है लेस देन 1% ऑफ जीडीपी ऑन R&D. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू encourage more researchers and developers and innovators to come in, show their talent. So new 1 lakh crore government scheme launched to boost research technology and innovation in India. So it is approved by cabinet in July 2025. It was launched during the inauguration of Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2025. The centered on the theme Viksit Bharat for 2047, and why it has been done first to catalyze the private sector participation in high impact R&D. It means हम यहाँ पे उन सेक्टर्स पे फोकस करेंगे जहाँ पे अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा हमें प्रोडक्ट ज़्यादा हमें आउटकम देखने को मिले। सो वो सेक्टर्स जो राइजिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। एंड सेकेंड, टू स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटी इन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट technological self-reliance aligning with nation's long-term innovation and Atmanirbhar Bharat vision. Right? Next we have what are the key objectives here. Key objectives simple say first we are encouraging the private sector to get involved in this. Promoting strategic technologies, it means जो mission critical areas हैं उन पे हम यहाँ पे focus कर रहे हैं, like energy security transition, climate action, deep technologies जिसमें quantum computing आता है, robotics and space, AI and its application and solving Indian problems, whether it is related to health, education or agriculture. Biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, pharma, medical devices, and lastly digital economy, that includes what? Digital architecture. Then next we have the fostering self-reliance and economic security, that means supporting technologies जो indigenization की तरफ indigenization के लिए essential है for strategic and economic reason, which is in line with Atmanirbhar Bharat. Then ensuring flexibility in sectoral support, it allows the support for any additional sectors or technology that that is essential for public, मतलब जो public interest में काम कर रही हो वो technologies. Then what is the funding and financial support? As we have discussed, 1 lakh crore is the total budget, and modes of financing will be long term loan मिलेंगे low interest rate पे. Equity infusion होगा especially in case of startups में equity infusion. Then contribution to deep tech fund of funds. It means कि पहले हम जो fund managers हैं उनको fund देंगे and then they will distribute it further. And exclusion criteria क्या है? Grants and short term loans are not supported here. Implementation structure is the first one is the special purpose fund, that mainly this is the main fund that hold the money. ठीक है, जो ये fund है money को hold करेगा. It is set up under ANRF, that is Anusandhan National Research Foundation, to serve as the first level custodian of the money. Then we have the second level fund manager. They will further distribute the money to the projects. Next is PLI scheme for specialty steel. It is the third round, PLI 1.2 launch. So the Ministry of Steel, Government of India is preparing to launch what? Third round of the PLI scheme for what? Specialty steel. It means it includes all the defense, aerospace, infrastructure and automobile. And now this, what is the specialty steel that we know now? Why PLI scheme is so important? Because it encourages the Indian companies to make these special steels in India instead of importing, because importing increase the cost. It is expensive, that's why. So that is the objective, and launch year was in July 2021. Outlays 6,322 crore. What are the key highlights? See, first one, who all are eligible under the scheme. So Indian registered company doing end-to-end manufacturing, these are eligible. Product coverage क्या है? The scheme cover 22 product subcategories. ठीक है, 22 product categories है and इनके अंदर 5 subcategories है, जिसमें क्या आता है? इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक स्टील ग्रेड, कमर्शियल ग्रेड, कोटेड एंड वायर प्रोडक्ट्स.
इंसेंटिव्स क्या मिलेगा? इट विल रेंज फ्रॉम 4% to 15% and will be available for 5 years. Starting from 2025-26 with dispersal schedule begin at 2026-27 से start होगा. Earlier जो rounds हुए हैं under the first two rounds under the scheme committed the investment of 43,874 and 22,937. ये आपको out of which 22,937 has been deployed. तो पहले के जो rounds हुए थे total इतना हुआ था, उसमें से 22 almost half यहाँ पे deploy हुआ है. Next is India AI mission unveils India AI governance. तो यहाँ पे जो माइटी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रिलीज द गाइडलाइंस इशू की है माइटी ने. क्यों की है? टू टेल कि हाउ एआई शुड बी यूज सेफली, एआई को हमें सेफली कैसे यूज करना है, उसका मिसयूज कैसे प्रिवेंट करना है, एंड हाउ वी कैन मेक एआई फेयर, एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी. सो एज वी कैन सी दैट एआई इज ग्रोइंग फास्ट बट also creating risks. So how we can minimize the risk? So government created some rules to ensure that AI is safe. That is what we call ethical AI. Now about the guidelines, so there are 4 components in the guideline. The first one is 7 guiding principles, that is 7 sutras, that why. फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जिसमें आपको लोन लेना है, ठीक है. तो पहले क्या होता था, ह्यूमन इंटरवेंशन होता था उसमें, तो पता नहीं चलता था लोन रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्या बाइसनेस है, क्या ऑफिसर को किसी और को लोन देना है, राइट. सो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. बट विथ एआई वी कैन चेक अगर कोई लोन रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाट इज द एक्चुअल और फैक्चुअल डिटेल ऑफ रिजेक्टिंग एनी लोन. सो इट इज for ethical and responsible AI centered on fairness, transparency, accountability, safety, privacy, inclusivity, and sustainability. Then key recommendation across 6 pillars. We have 6 pillars that AI जो है use कर सकते हैं हम, कितना यूज करते हैं, एंड फाइनली किस किस सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं. सो इट कवर्स ऑल दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट है, सेफ्टी टेस्टिंग कैसे, फॉर एग्जांपल हमें एआई को हॉस्पिटल्स में यूज करना है तो वो कितनी सेफ है पेशेंट्स पे यूज करने के लिए या उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज करने के लिए. सो डेटा एंड मॉडल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेक्टर अडॉप्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. Then next we have a time bound action plan is there. It means outlining short, medium and long term जो milestone है जो हमें achieve करने हैं under this project, and practical compliance guidelines. It means जो industry हैं, developers हैं, researchers हैं, regulators हैं, they should promote transparency, trustworthiness and accountability for AI deployment. कि उन्होंने अगर deploy किया है AI को सही से किया है, they have some practical compliance. Next is National Urban Conclave 2025, that is National Urban Conclave which was held in New Delhi. And what was the theme? Sustainable Urban Development and Governance. इस theme के अंदर ये launch हुआ था. क्यों हुआ था? Because यहाँ पे several new initiatives हैं जो launch हुए थे. Why? To make Indian cities more cleaner, smarter and better managed. तो ये cleanliness के लिए basically ज़्यादा हुआ था. So under it we have the dump site remediation accelerator program. Now what it will do? It is an year long program to clean old garbage. जो भी पुराना garbage है, जो भी dump sites हैं, उनको और faster हमें clear करना है, cities को और अच्छा बनाना है related to dump site. And what is the aim? To achieve zero dump sites by September 2026. ओके, ये यहाँ पे मिशन है एंड इट फोकस ऑन द बिगेस्ट वेस्ट साइट, जो सबसे बड़ी वेस्ट साइट्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है. एंड द फंड्स टू क्लीन एंड रिक्लेम लैंड फॉर डेवलपमेंट, ये क्या है, बिगेस्ट वेस्ट, और इसीलिए फंड यूज होगा यहाँ पे. सो इट ऑल्सो सपोर्ट्स द गोल ऑफ लक्ष्य जीरो डंप साइट. The central government provides financial assistance to cities considering estimated 550 per ton for legacy waste remediation. Okay. Next is Swachh Bharat Mission Knowledge Management Unit. So it is a new unit that is created at NIUA. Why? To share knowledge, build skills and support cities in better waste management and sanitation under Swachh Bharat Mission Urban. ओके, देन नेक्स्ट इज ये जो आपको डेटा है, ये आपको एग्जैक्टली डेटा याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पे लिखा है कि 50% है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कितनी डंप साइट अभी तक क्लीन हुई है या फिर कितना जो नंबर्स हैं वो आप स्किप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए. देन नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन KMU, ये हम कर चुके हैं. देन वी हैव अर्बन इन्वेस्ट विंडो, दैट इज UI Win इज अ प्लेटफॉर्म बाय हुडको. ठीक है, दैट इज it is an initiative by HUDCO under the guidance of Ministry of Housing and Urban Affairs.
इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प सिटीज़, ये सिटीज़ को हेल्प करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अचीव करने के लिए एट लो कॉस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट लो कॉस्ट, long term loans. Okay. And next is Jalhi Janani, that is an Amrit anthem for highlighting the importance of water in day to day life. Next, we have rules for sustainable harnessing of fisheries in India's EEZ. So, new rules यहाँ पे आए हैं to manage what the fishing, manage fishing in exclusive economic zone for sustainable and in a sustainable and responsible way. तो यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज दी हैं हमने, प्रायोरिटी दी है हमने यहाँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर अंडरटेकिंग डीप सी फिशिंग यूजिंग एडवांस वेसल. व्हाट इज द पर्पस? That they use modern vessels, better storage and mid-sea transfer system and help improve exports and increase fishermen's income, especially in it the land regions. ठीक है, तो इन island regions जो भी हैं उनमें specifically. So I have created a chart here ताकि आपको पूरी न्यूज़ ना पढ़नी पड़े, आप फटाफट यहाँ से अपना रिवाइज कर सके चीज़ें. So fishing first priority is to fisher cooperatives. Fishing in deep sea areas will be mainly done by whom? फिशर कॉपरेटिव्स हैं या फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है. डीप सी में मेनली यही फिशिंग करते हैं एंड दे विल यूज modern vessels, better storage and mid-sea transfer system, and this will help improve them, it will help improving exports and increase fishermen's income, especially in island region. Then we have the training and financial support. Fishermen will receive all the training, international exposure and support for processing, branding and exporting seafood. Then rules for sustainable fishing. Now to protect the marine life, harmful fishing methods like LED fishing हो गया, pair trawling हो गया, bull trawling हो गया, ये ban है and minimum legal fish size will be fixed. यहाँ पे fix होगा. Fisheries management plans will be made and the policy also encourages the marine culture जैसे कि sea cage farming और seaweed farming. Then next we have digital access pass for fishing in EEZ. So large vessels must apply online through रियल क्राफ्ट पोर्टल. ये रियल क्राफ्ट पोर्टल है, इसके थ्रू अप्लाई करना है टू गेट परमिशन टू फिश इन ईजी. जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें अगर आपको फिशिंग करनी है तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी एट रियल क्राफ्ट पोर्टल. एंड स्मॉल ट्रेडिशनल फिशर्स जो हैं दे कैन यूज स्मॉल बोट्स दैट डू नॉट नीड दिस पास. अगर उनकी स्मॉल बोट है तो उनको ये पास की जरूरत नहीं है. फॉरेन वेसल्स आर कंप्लीटली बैंड फ्रॉम फिशिंग इन ईजी. नेक्स्ट इज ट्रेसिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स के लिए क्या ट्रेसिबिलिटी है? द रियल क्राफ्ट सिस्टम विल बी कनेक्टेड टू MPEDA एंड EIC टू प्रोवाइड व्हाट? डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट्स. एंड दिस विल इम्प्रूव इंडियाज क्रेडिबिलिटी एंड हेल्प एक्सपोर्ट हाई वैल्यू फिश प्रोडक्ट. जो फिश प्रोडक्ट है वो हाई वैल्यू के ही हों उसके लिए चेक करेंगे. Next, we have the Watershed National Watershed Conference. Now we are coming to PIB, second week of November. Now, why this conference was organized? To review how India is managing its soil and water resources under which component? We have under Watershed Development component, which is under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. What is the primary agenda? Primary agenda यहाँ पे ये है that we can assess the progress of WDC under PMKSY 2.0 across all states and UTs. तो यहाँ पे सारे states and UTs involved हैं and we can discuss on the future roadmap क्या होना चाहिए for watershed development after 2026. ठीक है? So in this we have the Watershed Mahotsav. It will be celebrated across India at both state and project level. And यहाँ पे जो activities होंगी यहाँ पे होगा recognition of winners in Watershed Jan Bhagidari Cup 2025 and it will also lay the foundation of new projects. New projects कौन से होंगे? Shramdan, that is voluntary labor, tree plantation drive among other participatory initiative. Then next we have the Mission Watershed Revitalization. It will be launched under Mahotsav to provide renewed direction and momentum for the maintenance and repair of soil and water conservation structure that is created under PMKSY 1.0. And also it is an effective mechanism like for undertaking activities under NREGA scheme.
Now, what is the background of the watershed development component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? See, the objective of this component is to restore all the ecological balance. How? By harnessing, conserving, and developing degraded natural resources. Second, to enhance the agricultural productivity, ensuring sustainable livelihood, promoting participatory natural resources. Again, now next, it is a centrally sponsored scheme implemented by Department of Land Resources under Ministry of Rural Development, and it focuses on the rain-fed and degraded land across states and in UTs of Jammu Kashmir and Ladakh. Next, we have PLFS quarterly bulletin, that is for July to September 2025. So I have सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है. देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करता है? एनएसओ. नाउ फ्रॉम जनवरी 2025, एज वी ऑल नो कि मेथोडोलॉजी थोड़ी चेंज हुई है. व्हाई? वी आर इन जनवरी वी इंट्रोड्यूस्ड मंथली एंड क्वार्टरली एस्टिमेट्स, राइट? सो ये फ्रेमवर्क रिवैम्प हुआ है, दैट एम्स टू जनरेट व्हाट? की इंडिकेटर्स को एक्यूरेट डेटा और देने के लिए, लाइक इन LFPR, UR, WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, एवरी मंथ एट द नेशनल लेवल अंडर CWS, करंट वीकली स्टेटस. नेक्स्ट, एक्सटेंड द क्वार्टरली रिजल्ट्स टू रूरल एरियाज. जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे वो रूरल एरियाज में भी एक्सटेंड करने हैं. प्रोड्यूसिंग व्हाट? लेबर मार्केट एस्टिमेट्स फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. देन प्रोवाइड एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ की इंडिकेटर्स. जो भी आपके यूजुअल स्टेटस है या करंट वीकली स्टेटस है, उन फ्रेमवर्क के लिए एस्टिमेट्स प्रोवाइड करना. सो इफ यू टॉक अबाउट द LFPR share of people, that is 15 years and above, who are working or looking for work. ओवरऑल जो है LFPR ये इंक्रीज हुआ है स्लाइटली फ्रॉम 55% टू 55.1. रूरल FPR भी इंक्रीज हुआ है स्लाइटली, एंड अर्बन LFPR भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है. देन फीमेल पार्टिसिपेशन इज इम्प्रूविंग. एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो इंक्रीज है वो सब में ही 0.1% का है. ठीक है, तो LFPR में जो भी इंक्रीज है वो 0.1% का है. एंड इन फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल LFPR इम्प्रूव फ्रॉम 33.4 टू 33.7%. तो आपको मेजरली ट्रेंड याद रखना है कि ये इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है. अगर आप परसेंटेज याद नहीं रख सकते तो, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली ट्रेंड बेसिस पे आते हैं. रूरल फीमेल LFPR इम्प्रूव हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है बाय 0.5%. दिस शोज व्हाट? दैट मोर वुमेन आर ज्वाइनिंग वर्कफोर्स ग्रेजुअली एंड स्पेशली इन रूरल एरियाज. देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि रूरल एरियाज में वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है कि अर्बन में. ये इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वुमेन ज्वाइन कर रही है वर्कफोर्स को, एंड दिस ट्रेंड इज मोर विजिबल इन रूरल एरियाज. देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, द शेयर ऑफ 15+ ईयर्स एक्चुअली वर्किंग, जो ओवरऑल WPR है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है, एंड फीमेल WPR भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 31.6 टू 32. अगेन वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू वर्क एक्टिविटीज. अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है बाय 0.2%. बाय 0.2% ये ओवरऑल बाय 0.2%. देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी फेल हुआ है, मतलब ये इंप्रूव हुआ है, और यू कैन से डिक्रीज हुई है अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज स्लाइटली, अर्बन एरियाज में स्लाइटली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है. रूरल एरियाज में डिक्रीज हुई है, अर्बन में इंक्रीज हुई है. मेन में इंक्रीज हुई है बाय 0.1%, वुमेन में इंक्रीज हुई है बाय 0.1%. ओके, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 0.1% है. रूरल वर्सेस अर्बन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. Now it has increased from 60.7 to 62.8%. एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू फार्मिंग सीजन. तो देर कैन बी ए क्वेश्चन, क्या एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, द रीजन बीइंग द फार्मिंग सीजन. अर्बन एरियाज में जो रेगुलर सैलरी जॉब्स हैं ये इंक्रीज हुई हैं स्लाइटली, एंड सर्विस सेक्टर स्टिल डोमिनेट कर रहा है इस एरिया को. देन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, about 56.2 crore people are working currently in this particular quarter, and 39.6 crore men हैं और 16.6 crore women है. So men are more than women, ये याद रखना आपको. Okay, so this was the data. Okay, next we have the 18th urban mobility. Next we have the 18th Urban Mobility India UMI Conference and Exhibition. So जो 18th कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है? गुड़गांव हरियाणा में हुई है, एंड इट इज इंडियाज मेजर एनुअल इवेंट फॉर व्हाट?
urban transport and mobility. Okay. So what was there? So 3 days Urban Mobility India was held in Gurugram, Haryana, and जो 19th कॉन्फ्रेंस होगी हमारी वो कहाँ होगी? भुवनेश्वर, ओडिशा. और ये कब होगी? 23rd to 25th of October 2026. एंड यहाँ पे जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है ये कंक्लूड होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. और ये कैटेगरीज कितनी है? 8 है. कौन कौन सी हैं? सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी विद नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, most innovative financing, best green transport initiative, metro rail with best multimodal integration, metro rail with best passenger services, running trophy for state or UT which has implemented best urban transport project in previous year, then special awards for efficient traffic management system and deserves recognition. ठीक है, तो ये अवार्ड्स हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकते हो. लाइक मेट्रो रेल में जो यहाँ पे बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है वो चेन्नई का है. अगर पैसेंजर सर्विस में देखें तो दिल्ली है. ठीक है. एंड यहाँ पे जो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है वो चेन्नई को मिला है. देन बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम उदयपुर, नॉन मोटराइज. एंड मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इज इन पिंपरी चिचवाड़. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे. एंड इन एडिशन टू दीज जो ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड्स मिले, फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. सेकेंड प्राइज महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. थर्ड प्राइज एम्बेसी ऑफ स्पेन. नेक्स्ट इज सम लिस्ट ऑफ आउटकम्स दैट इज विजिट ऑफ पीएम टू भूटान. जो हमारे पीएम है वो भूटान में उन्होंने विजिट किया था, तो उसके कुछ आउटकम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज दी प्रोजेक्ट 1020 मेगावाट पुनः द वर्ड इज बिट डिफिकल्ट. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है. द प्रोजेक्ट इज जॉइंटली बिल्ट बाय इंडिया एंड भूटान. एंड पहले ये डिले हो गया था, मतलब ये इसको बंद कर दिया था. अब नाउ ये दोबारा रीस्टार्ट हुआ है. एंड देयर इज अ ग्रांट ऑफ लैंड इन वाराणसी फॉर बिल्डिंग व्हाट? भूटानीज टेम्पल और मोनास्ट्री एंड गेस्ट हाउस. कहाँ पे लैंड दिया है? वाराणसी में. एंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट यहाँ पे स्टैब्लिश होगा इन हतीसर अक्रॉस गिलीफू. एंड 4000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे दी है टू भूटान. एग्रीमेंट्स किस किस फील्ड में साइन हुए हैं बस ये आपको याद रखना है. वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड मेडिसिन, and MOU between PEMA Secretariat that is of Bhutan and National Institute of Mental Health and Neuroscience India on building institutional linkages. ठीक है. So they will focus on mental health and training, developing mental health centers in Bhutan, strengthening what? Research and institutional cooperation, right? Next we have India delivers a strong statement for basic and LMDC at the opening plenary UNFCCC COP30. तो यहाँ पे किया क्या है बेसिकली? जो COP30 है इन बेलिन ब्राजील, इंडिया ने यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बारे में बात की है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. द फर्स्ट वन इज द बेसिक. First one is the basic, that is Brazil, South Africa, India and China, and LMDC, that is like-minded developing countries. So India highlighted 3 main principles of global climate action. The first one is equity and fairness. Then they talked about that common but differentiated responsibility. मतलब responsibility common होनी चाहिए but differentiated होनी चाहिए. कैसे? कि जो rich countries हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उनको ज़्यादा help करनी चाहिए. And full implementation of the UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement. India also said that it will remain committed to what? Cooperation even during global tensions. जब भी global tension होंगे तब भी India committed रहेगा for this. So what are the key points here? The first one is the climate finance. तो पहली ये जिस चीज की बात करता है ये है climate finance. So climate finance seen as the biggest problem here. तो इंडिया ने कहा that India said that there is a lack of money for climate action and इट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे बैरियर है. सो अ क्लियर एंड एग्रीड डेफिनेशन शुड बी देयर ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. क्लाइमेट फाइनेंस पे क्लियर एग्रीड डेफिनेशन होनी चाहिए. जो हमारा पब्लिक फाइनेंस है स्पेशली फॉर एडेप्टेशन ये हायर होना चाहिए. देयर शुड बी मोर फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन एंड देयर शुड बी फुलफिलमेंट ऑफ आर्टिकल 9.1 विच लीगली ऑब्लिगेट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू provide financial resources to developing countries. Then second is strong outcome needed on global
ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन, जो अडेप्टेशन है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग गोल नीडेड है. सो इंडिया वांट्स अ क्लियर सेट ऑफ इंडिकेटर्स, कि मिनिमम सेट ऑफ इंडिकेटर्स तो होने ही चाहिए. दे शुड बी नो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज पे. एंड इट ऑल्सो सपोर्टेड द यूएई बेलिम वर्क प्रोग्राम एंड द बाकू अडेप्टेशन रोड मैप. देन क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज एंड जस्ट ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, सो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, कि इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या बाकी कंट्रीज हैं जो रिच नहीं है वो उसे अफोर्ड ना कर पाएं. देन अपोजिशन टू यूनिलैटरल क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड मेजर्स, जो ट्रेड मेजर्स हैं वो जस्ट एंड फेयर होने चाहिए. इंडिया सेड दैट देयर शुड बी शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी, बट इट मस्ट बी फेयर, पीपल सेंट्रिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड. नाउ लास्टली हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉल टू डेवलप नेशन, की कॉल किया इन्होंने डेवलप नेशन को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस करें, लाइक रीच नेट जीरो अर्लियर, प्रिजर्विंग इक्विटेबल कार्बन स्पेस, देन इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली मोर इन नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज, fulfill obligation on finance, technology transfer and capacity building. Next we have the credit guarantee scheme for exporters, that is CGSC. जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है. इट इज़ अ न्यू स्कीम टू हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली एमएसएमईज गेट ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट. ठीक है, तो स्कीम करती क्या है, इट विल प्रोवाइड, the scheme will provide 100% credit guarantee through NCGTC, that is it will provide through this organization, and bank and lending institution can give up to 20,000 crore in extra loans to exporters without any collateral. ठीक है, तो 100% क्रेडिट गारंटी देगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, एंड बैंक्स और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन 20,000 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं एक्स्ट्रा विदाउट एनी कोलैटरल. How it will work? It will be implemented through DFS, that is Department of Financial Services, and यहाँ पे committed committee chair होगी, और chair कौन करेगा, Secretary of DFS, and it will monitor and guide the scheme. And also the aim is to make credit support quick, simple and accessible. Why it matters? See, it will give more liquidity and working capital to the MSMEs and exporters, reducing financial stress, especially for MSME exporters. It will support the expansion into new global markets, creating more linkages, boosting India's target of $1 trillion of exports and strengthening India's export competitiveness. Now, if you talk about the background, exports contribute around 21% of the India's GDP. 45 million people deepen the export-linked subsidies, and MSME कितना contribute करती है इसमें? 45% of India's export. That's why the scheme is focused more on MSMEs. Next is Export Promotion Mission, that is EPM. The Union Cabinet has approved the EPM, Export Promotion Mission. तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे मिशन अप्रूव हुआ है स्पेशली फॉर एमएसएमई, न्यू एक्सपोर्टर्स एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. नाउ व्हाट इट विल डू, सी इन द बजट, in union budget 2025-26, the total outlay was announced, that is 25,060 crore. Duration is from 2025-26 till 2030-31, and the implementing agency is DGFT. DGFT यहाँ पे implementing agency है, and it will run through a joint structure. Joint structure में कौन कौन होगा? Will have a Department of Commerce, Ministry of MSME, Ministry of Finance, Export Promotion Council, industry bodies and state government. This will create a unified export system. And here we have two main schemes. यहाँ पे दो main schemes है जिनकी बात की. The first one is the Niryat Protsahan, that is the financial support for exporters. It will help MSMEs to get cheaper and easier trade finance through what? Interest subvention, export factoring, credit guarantee, credit card for e-commerce exporters, and support for new entering, सपोर्ट फॉर एंटरिंग न्यू मार्केट्स. अगर आप न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा वो इसके थ्रू मिलेगा, दैट इज निर्यात प्रोत्साहन. Then second one is the Niryat Disha. It means it is a non-financial support for exporters. ऊपर वाले में हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, बट यहाँ पे निर्यात दिशा में हम दिशा दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे फाइनेंशियली. इट विल हेल्प एक्सपोर्टर्स इंप्रूव देयर रेडीनेस थ्रू, कि वो क्वालिटी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड फेयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसमें मतलब पैसा नहीं लगता, गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है. एंड नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डिजिटल मिशन.
The applications, approvals and fund transfer will happen on a single digital platform. Multiple platforms यहाँ पे नहीं होंगे, and it will solve the problem like poor access to cheap trade finance जो है, high cost of meeting global standards, weak branding Indian product, fragmented scheme, logistic issues in interior districts. Okay, so this was the scheme. Then next we have the Plant Genome Survey Awards. ये अवार्ड्स हैं. अब इन अवार्ड्स में क्या है, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हमारे recently participated in the Plant Genome Surveyor Award, celebrating what the silver jubilee of the protection of plant varieties and farmers' right Act 2001, and it is the 21st foundation day of PPV and FRA. Among the awardees, there were Community Seed Bank of Telangana, Shiksha Niketan of Purba Bardham, West Bengal. Then ये अलग अलग ही आपको याद नहीं करने, ठीक है. You can just read once, but you do not need to remember everything here. Now, if we talk about the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, ये एक statutory body है जो establish हुई थी under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001, and the parent ministry is Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Headquarter is in New Delhi. Primary objective इसके क्या है कि हम कैसे grant कर सकते हैं IP rights टू प्लांट ब्रीडर्स फॉर देयर इनोवेशन इन डेवलपिंग न्यू वेराइटीज की. जैसे मान लो ब्लैक ब्रोकली आई थी, या फिर ब्रिंजल्स हैं अलग अलग टाइप के, या कुकुम्बर है अलग अलग टाइप के, तो इनोवेटिव आइडिया से जनरेट किए जाते हैं, तो उनके लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे. रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड फार्मर्स एंड कम्युनिटीज टू कंजर्व ट्रेडिशनल वेराइटीज एंड बायोडाइवर्सिटी. Promote the protection of farmer rights to save, use, sow, resow, exchange, share, and sell farm saved seed of registered varieties. Then encourage research and innovation in plant breeding and agriculture. Maintain the National Register of Plant Varieties, right? So these were the important objectives. Then next we have the insights from the Global TB report. जो Global TB report है उसके कुछ insights हैं, and this is the last news. So according to the WHO, Global TB Report 2025, और ये important है for the upcoming examinations, India has reduced TB cases. TB cases हमारे reduce हुए हैं by 21%, ठीक है, and it is almost twice of global rate. जो भी global rate है उससे दुगनी तेजी से हमने ड्रॉप किया है रेट, एंड मेकिंग इंडिया वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हाई टीबी बर्डन कंट्रीज, राइट. देन इंडिया इंप्रूव द टीबी डिटेक्शन यूजिंग, अब देखो बेटर टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इंडिया में है, दैट इज रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है हमारे पास, कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग है, डिसेंट्रलाइज सर्विसेज थ्रू हेल्थ सेंटर्स. देन एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ है, जो ट्रीटमेंट कवरेज है वो इंक्रीज हुई है टू अप टू 92%, एंड यहाँ पे जो डिटेक्टेड केसेस है वो कितने हैं, 26.18 लाख ये डिटेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 27 लाख, एंड जो मिसिंग टीबी केसेस हैं ये भी रिड्यूस हुए हैं 15 लाख से लेस देन 1 लाख, एंड एमडीआर टीबी केसेस डिड नॉट इंक्रीज. जो एमडीआर टीबी केसेस हैं वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुए, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है दैट इज नाउ 90%, विच इज हायर देन ग्लोबल रेट विच इज अराउंड 88%. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टीबी डेथ्स, दिस हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 28 lakh to 21 lakh to 21 per lakh, ठीक है, 28 per lakh to 21 per lakh, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा याद कर लेना. एंड ये क्यों हुआ है, क्योंकि ट्रीटमेंट कवरेज इंक्रीज हुआ है, ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, एंड दिस शोज दैट इंडिया इज कैचिंग टीबी अर्ली इवन बिफोर दिस प्राइमरी सिम्टम्स. ओके, देन टीबी मुक्त भारत अभियान जो हमने लॉन्च किया था उसकी वजह से भी, विच वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2024, इन्होंने स्क्रीनिंग इंक्रीज की है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टीबी केसेस डिटेक्ट हुए स्पेसिफिकली जो एसिम्टोमेटिक है, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, राइट. सो इससे पहले सिम्टम्स अपीयर हो उससे पहले ही हम डिटेक्ट करें टीबी केसेस, दैट्स वाई वी आर इम्प्रूविंग. देन इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट TB lab network, world's largest TB network है इंडिया के पास. Like we have more molecular labs, we have cultural and drug resistance lab, then AI enabled handheld X-ray units हमारे पास हैं, एंड इसकी वजह से क्या है, टीबी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है वो क्लोजर आ रही है विजिलेंस विलेजेस में एंड रिमोट एरियाज में. एंड लास्टली मोर न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट इज देयर. सो अंडर निक्षय पोषण योजना मंथली सपोर्ट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 500 to 1000, एंड यहाँ पे जो सिंस 2018 कितना हम अमाउंट दे चुके हैं, 4,406 करोड़ दे चुके हैं टू अराउंड 1.3 करोड़ ऑफ टीबी पेशेंट, राइट. सो यहाँ पे जो निक्षय मित्रास हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड बास्केट्स, एंड
भारत वॉलंटियर्स, माय भारत वॉलंटियर्स ने भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया है टू टीबी पेशेंट, एंड दिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प्ड इंडिया मूव क्लोजर टू द टीबी एलिमिनेशन, राइट? नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद week 3 of November 2025. So starting with the first news, what it is about. The first news is about the India's trade performance, October 2025 and April to October 2025, which is the overview. So as you can see that I have made a gist table, like you can go through this table as a summary of the trade performance of India. If you see the overall picture of the trade performance, our exports is at the growth of negative 0.68%. So if there is a question about the growth rate, it is negative for exports in overall picture, and for import it is around positive 14.87%. It means more demand is there in the economy. April to October 2025, the export shows a positive 4.84% growth, and imports are still positive 5.74%. So positive growth is there. And if you talk about the overall merchandise trade, if you talk about the particularly merchandise trade, the exports are lower than 38.98 billion, 38.98 billion as earlier, एंड इम्पोर्ट्स आर 76.06 बिलियन. सो जो पिछले बार जो हमारा फिगर था उससे हायर है ये वाला फिगर. इम्पोर्ट्स आर इंक्रीजिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मर्केंटाइज अप्रैल टू अक्टूबर 2025 डेटा, ये अप हुआ है फ्रॉम 252.66 बिलियन जो अर्लियर था, अब ये अप हुआ है एट 254.25 बिलियन. एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं एंड इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं. सो बोथ आर इंक्रीजिंग, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है दोनों में. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेड डेफिसिट कितना है हमारा, दैट इज अराउंड यूएस डॉलर 196.82 बिलियन डॉलर. सो वाइडर देन अर्लियर, दैट वाज 171.40 बिलियन इन द लास्ट ईयर. सो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है, वाइडर हुआ है. नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी इफ यू टॉक अबाउट, सो एक्सपोर्ट्स आर डाउन फ्रॉम 31.32 बिलियन जो अर्लियर फिगर था, तो एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए हैं एंड इंपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं. सो देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन एक्सपोर्ट्स इफ यू टॉक अबाउट द नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी, एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स if you talk about the non-petroleum and non-gems and jewelry. Service trade, in service trade October 2025, it is up from, exports are up from 34.41 billion, now they are at 38.52 approximately, and imports are also increasing, so both are at positive growth rate. Then April to October 2025, in this time period, exports are up from 216.45. So exports are increasing. Also, imports were up from 114.96 billion. Service trade surplus, we have service trade surplus of 11.868 billion, which is up from the previous year, and service exports growth ओवरऑल इज पॉजिटिव 9.75%. सो क्वेश्चंस जो है हमारे यहीं से मेजरली फॉर्म होते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कितना है, अगर सर्विसेज ट्रेड सरप्लस है तो कितना है, ग्रोथ रेट कितना है. ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट इज अराउंड 9.75%. नेक्स्ट, अब फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन से, इट मींस कि जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें किन कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट डिमांड है, या डिमांड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है. सो इफ यू टॉक अबाउट comparing with October 2024, in 2025, the China showed a positive growth rate of 42.35%, Spain positive 43.43%, then Sri Lanka also showed a positive growth rate, then Vietnam, and then Tanzania. Okay. Next is, if you talk about April to October 2024 versus 2025, USA showed a positive growth rate around 10%, then China 24%, UAE 5.8% approximately, highest is in Spain. Okay, highest is in Spain, then in China, then Hong Kong, and then finally USA. So you need to learn the ascending or descending order ki highest or lowest क्या है. ठीक है, you do not need to learn the exact percentage, but you can remember the lowest destination and the highest destination based on demand. Now what about the fastest growing import sources? जो import sources हैं उसमें से fastest कौन से हैं? We have Switzerland. Switzerland is up, that is positive 403.67%. Then we have UK, United Kingdom, then we have Hong Kong, then China, and then finally UAE. And in April to October 2024 versus 2025, we have China, UAE, Hong Kong. Ireland is at the highest, and then USA. Okay, Ireland is at the highest. After that, we have Hong Kong. Hong Kong के बाद we have UAE, then China, and finally USA. देखो, अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन में हम ये कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स ओवरऑल जो कितनी है वो माइल्ड है, इंपोर्ट्स क्या है
राइज हो रहे हैं, बट दे आर राइजिंग फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये एनालिसिस है ऑफ द ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस। मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट क्या है, और वाइड हो रहा है। सर्विस सेक्टर शो कर रहा है इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट नियरली अराउंड 10% ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ। स्पेन, चाइना, हांगकांग एंड आयरलैंड शो हाई ट्रेड ग्रोथ। ठीक है, हाई ट्रेड ग्रोथ कहाँ पे है, स्पेन, चाइना एंड Spain, China, Hong Kong and Ireland. Okay, this was the trade performance. Now next news is about the National Gopal Ratna Awards NGRA 2025. Now what is the purpose of this award? See, it is the highest award in India's livestock and dairy sector. It recognizes the आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जो यहाँ विनर्स ने की है उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। द विजन इज सिंपल, टू इम्प्रूव इंडियाज काउज एंड बफेलोज साइंटिफिकली। इन्हें हमें कैसे इम्प्रूव करना है। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2014, दिसंबर 2014। ऑब्जेक्टिव क्या था कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो भी है हमारा इन साइंटिफिक कैटल रेयरिंग, मिल्क प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव बेस्ड डेयरी डेवलपमेंट, उसको हम रिकॉग्नाइज करें। एंड अवार्ड्स आर part of the broader initiative to strengthen India's bovine sector. It means हम बोवाइन सेक्टर को और ज़्यादा साइंटिफिकली इंप्रूव करना चाहते हैं, और उस फील्ड में जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है उनके एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो दे फोकस ऑन द साइंटिफिक कंजर्वेशन। नाउ अबाउट NGRA अवार्ड्स, दीज इंक्लूड थ्री कैटेगरीज यहाँ पे हैं जिनमें अवार्ड्स हमें दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज द बेस्ट डेयरी फार्म, देन बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रैंक को क्या मिलता है, जो मॉनेटरी अवार्ड्स हैं आर प्रोवाइडेड ओनली इन द फर्स्ट टू कैटेगरीज। द प्राइस स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, द फर्स्ट वन इज 5 लाख, देन 3 लाख एंड देन 2 लाख। ठीक है, एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न, स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिमालयन स्टेट, इट इज अराउंड 2 लाख रुपीज। सो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे मिले हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, जो हमारे अवार्ड्स हैं एक बार जस्ट इन्हें रीड कर लेना, सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, सो यू कैन जस्ट गिव अ लुक एट इट। नाउ नेक्स्ट इज PLFS मंथली बुलेटिन अक्टूबर 2025। नाउ PLFS मंथली बुलेटिन अक्टूबर में क्या है कि हम मंथली देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी वर्कफोर्स का पार्ट है, कितने नहीं हैं, कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। सो PLFS इज कंडक्टेड बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यहाँ पे कहाँ से आता है, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है ऑफ द पॉपुलेशन। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी इज द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस that was implemented from January 2025 to provide monthly and quarterly estimates of labor force indicator to provide a better accuracy of the data. Now the monthly results of PLFS are released in the form of monthly bulletin, and it is around the key labor market indicators. These are labor force participation rate, worker population ratio and unemployment rate. So monthly bulletin जो है, these are for the months of April to September 2025. ये already release हो चुके हैं, and the present monthly bulletin is of October 2025. और जो की फाइंडिंग्स हैं किसके लिए होती हैं, फॉर द पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव फॉलोइंग द CWS। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन previous class की CWS क्या है and why we are using it. So the first one is, what is the labor force participation rate currently? So if you talk about the overall LFPR, it was around 54 approximately in June. Now it is around 55.4%. So what you need to remember here, what is important, that it is the fourth consecutively monthly rise. It means ये fourth month है जहाँ consecutively जो हमारा LFPR है वो राइज हो रहा है, एंड मार्क्स अ 6 मंथ हाई। मतलब पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमें ये रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फोर्थ कंसिक्यूटिवली मंथली राइज एंड मार्क्स द हाईएस्ट इन द 6 मंथ। Now rural LFPR, we have June 2025 56.1%. Now in October it is also increasing. So rural areas are driving the LFPR improvement. So main reason क्या है, जो rural area है वहाँ पे LFPR increase हो रहा है, which is putting a spillover effect on the overall LFPR. Now female labor force participation, strong upward trend यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. It means what it indicates that more females are participating in the labor workforce, and the overall LFPR now stands at 34.2%, up from June 2025. So this is the highest since May 2025. This information is important for the examination. If you do not remember the exact percentage, just focus on these
क्रुक्स पॉइंट कि क्या कहना चाह रहा है डेटा आपसे। तो डेटा ये कहना चाह रहा है कि मई 2025 से अगर अभी अभी तक हम देखें, दिस इज द हाईएस्ट एंड इट इज ड्रिवन मेनली बाय रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जामिनर को पता है कि मे बी आप परसेंटेज याद करके जा रहे हैं, बट वो क्वेश्चन फॉर्म कहाँ से होंगे, क्वेश्चन फॉर्म यहीं से होंगे कि जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो रूरल पार्टिसिपेशन में हायर है कि अर्बन पार्टिसिपेशन हायर है। सो रूरल में हायर है एंड अभी तक का हाईएस्ट है सिंस मई 2025। worker population ratio, if you talk about, the ratio has been rising steadily since June 2025. So ये एक बार भी नीचे नहीं आया है। worker population ratio, it is increasing. And female WPR means female working at the age of 15 or above. In October 2025 it is around 32.4%, which is highest from June 2025. Now this is the fourth consecutive month of the growth. So कंटिन्यूसली ये फोर्थ मंथ है जिसमें ये इंक्रीज हो रहा है। एंड रूरल फीमेल वर्कफोर्स इन अक्टूबर 2025 इट इज अराउंड 36.9%, हायर फ्रॉम 33.6% इन जून 2025. सो द रूरल फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ rise in WPR as well as in LFPR. Unemployment rate, the overall unemployment rate in October 2025 is 5.2%. So there is no change if you compare it with June 2025. So there is no change in unemployment rate. Okay. Then in rural and urban areas, unemployment rate, rural area में जो unemployment rate है वो decline हुआ है. So there is a declining trend in rural unemployment rate, and in urban unemployment rate there is a rise from 6.8% to 7%. Now these two movements cancel out क्योंकि एक increase हो रहा है एक decrease हो रहा है, ये आपस में cancel out हो रहे हैं. That's why unemployment rate is stable. फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयमेंट रेट, फीमेल एंड मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, फीमेल की अगर बात करें तो इन अक्टूबर इट स्टैंड्स अराउंड 5.4%, विच इज अ स्लाइट डाउन फ्रॉम जून 2025. सो देयर इज अ दिस इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द ओवरऑल डिक्लाइन, अगर कुछ हुआ भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन. सो रूरल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स फ्रॉम 4.3% to 4%. Now male unemployment rate, it remains stable at 5.1%. Rural male unemployment rate जो है वो decline हुआ है और urban वाला increase हुआ है. Okay, so this was our PLFS data. Next is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, new coverage for wild animal attacks and paddy inundation. So the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has announced two major enhancement in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. क्या है ये? First is the crop damage caused by wild animal attacks and second is paddy inundation. Inundation का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो farmers हैं उनकी जो क्रॉप होती है वो आधी पानी में हो जाती है. वाई? बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ सम हेवी रेनफॉल और अदर इश्यूज लाइक वाई हेवी रेनफॉल हो गया, फ्लडिंग हो गया, या पानी रुक जाता है ज़मीन पे कहीं तो वो फील्ड्स में इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्रॉप क्या है डैमेज हो जाती है, स्पेशली पैडी. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपकी क्रॉप डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ द वाइल्ड एनिमल अटैक या फिर पैडी इनंडेशन की वजह से, अब वो भी यहाँ पे कवर्ड है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. वाई दिस हैज बीन डन? To protect our farmers facing sudden and severe localized crop loss. So wild animal attack has now been introduced as the fifth add-on cover. तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो वाइल्ड एनिमल अटैक को हम कवर कर रहे हैं ये कौन सा एड ऑन है, ये फिफ्थ एड ऑन है अंडर द लोकलाइज्ड रिस्क कैटेगरी ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. एंड स्टेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जस्ट अ सेकेंड. सो स्टेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग. स्टेट्स का काम क्या है, नोटिफाई करना लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल स्पीसीज जो वहाँ पे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र वी हैव वाइल्ड बोर, इन ओडिशा वी हैव एलिफेंट्स जो वहाँ पे क्रॉप्स को बहुत डैमेज कर देते हैं. सो फार्मर्स सफरिंग लॉस ड्यू टू सच अटैक्स मस्ट रिपोर्ट. अब फार्मर्स जिन्होंने ये क्रॉप लॉस फेस कर रहे हैं उनको कितने टाइम लिमिट में हमें रिपोर्ट करना है, 72 आवर्स में. 72 आवर्स कहाँ से करेंगे, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से करेंगे. एंड दिस इज द साइंटिफिक एंड transparent mechanism to ensure what verification and timely settlement of the claims. So this includes many states जो severely impacted हैं ये दो reasons की वजह से. We have Odisha in which we can see elephant attack, then Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra we have wild boar, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Uttarakhand and Himalayan and northeastern states भी यहाँ पे covered है, right? So reintroduction of paddy inundation, जो
पैडी इनंडेशन है उसका री इंट्रोडक्शन हुआ है एज अ लोकलाइज्ड कैलेमिटी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और जो मेजर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे कवर्ड हैं, दीज आर उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। ओके, next is about the Trade Intelligence and Analytics portal, that is TIA portal. Ministry of Commerce and Industry recently launched the Trade Intelligence and Analytics portal. अब ये portal करेगा क्या? It is a kind of a single online platform for what to where government can see all the important trade data in one view. एक ही view में यहाँ पे सारे government data जो है गवर्नमेंट डेटा गवर्नमेंट देख सकती है, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ टीआईए इन मार्च 2024। तब से इनिशिएट हुआ था फॉर अ रोबस्ट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फ्रेमवर्क टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड एनेबल टारगेटेड सेक्टोरल इंटरवेंशन, इसके लिए हुआ था। सो इफ यू टॉक अबाउट द टीआईए पोर्टल, इट इज डिजाइन टू एनहांस द ट्रेड एनालिटिक्स। जो हमारे ट्रेड एनालिटिक्स हैं उनको कैसे हम केटर कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हुआ क्यों है कि हम जो ट्रेड पॉलिसीज है उनको और बेटर बना सकें, जो स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इन सब के लिए ये वन stop solution है to cater various perspective. Now it serves as a centralized digital hub that consolidates diverse trade database with global UN Comtrade and bilateral, right? So यहाँ पे multiple existing analytics requirement है that were designed and developed into automated analytical capabilities which is now offer depth and breadth. So जो भी analytics है यहाँ पे उसमें हम और deeper जा सकते हैं, it can help in policy making, government intervention, so it is like a trade watch tower, ठीक है। सो जो पोर्टल है ये जो मेन इसका काम है वो है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। लाइक सो इट ब्रिंग्स टुगेदर डेटा अबाउट इंडिया का ट्रेड क्या है, देन ग्लोबल ट्रेड क्या है, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईच कंट्री, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे फोकस करना लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट डेटा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज न्यू डिजिटल Next is new digital initiatives by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने announce किया है new digital initiative specially for modernizing the warehousing. So it is there to make India's food storage system and ration system fully digital and modern. इसमें ये help करेगा. So purpose क्या है? Purpose is very simple, that the ministry has launched new tools, digital tools to make warehouses, storage, फूड स्टोरेज, मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन या फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट, फास्ट एंड एरर फ्री, राइट। सो इट इज लाइक मेकिंग इंडियाज फूड स्टोरेज सिस्टम कंप्लीटली मॉडर्नाइज, फुल्ली डिजिटल, दैट इज अवेलेबल एट द टिप्स। सो वेरियस इनिशिएटिव्स इसके अंडर अभी लॉन्च हुए हैं एंड द फर्स्ट वन इज दी भंडारण 360, ठीक है, भंडारण 360। इट इज अ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन न्यू ईआरपी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी किस में हेल्प करता है हमारी? इट इज लाइक अ सिंगल सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एचआर, फाइनेंस, वेयर हाउस, अकाउंट्स है, ये एक साथ काम करते हैं, दैट इज ईआरपी। इट इज बिल्ट ऑन एसएपी S4, है ना, दैट कनेक्ट्स मेनी वेयर हाउसेस फंक्शन इनटू वन प्लेस। इट इज लाइक कि देखो जैसे आप गूगल पे लॉग इन करते हो तो आप एक ही बार लॉग इन करते हो, फिर आपके पास एक इंटरफेस आता है जहाँ पे आप गूगल के थ्रू ही आप अपना यूट्यूब ओपन कर सकते हो। यूट्यूब में अलग साइन इन नहीं चाहिए, फिर आपकी जो बाकी गूगल मीट है या फिर अलग एप्लीकेशंस हैं गूगल की, उसमें आपको अलग अलग साइन इन नहीं करना, यू जस्ट नीड टू साइन इन वंस। सेम इज हेयर विद SAP S4, है ना, सिस्टम जहाँ पे कनेक्ट करता है सारे वेयर हाउसेस को एंड यू जस्ट नीड टू लॉग इन वंस। सो इट इंटीग्रेट्स द 41 मॉड्यूल्स जैसे कि HR हो गया, फाइनेंस, देन मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अदर फंक्शंस, राइट। सो इट इज़ लाइक दिस। सो जो हमारा SAP है ये एक हाई स्पीड सॉफ्टवेयर है जो यूजुअली बिग कंपनीज यूज करती हैं, नाउ वी आर यूजिंग इट हेयर।
Now, what it introduces a single sign-on. It means you need to log in one and access everything. एक ही बार आपको log in करना है. Then it provides data, end-to-end data encryption. Your information is locked, so no one can access it. कोई आपकी information misuse नहीं कर सकता, ठीक है? Then real-time dashboard showing operations from warehouse level to corporate level. जो है ये real time है. It means a record of who did what. मतलब कि एक पूरा record है कि किसने कौन आया कौन किसने आपके डेटा के साथ छेड़खानी से. सो इट इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज विद चैटबॉट्स एंड आरपीए इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट टॉक टू यू एंड सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम्स ये यहाँ पे हैं. चैटबॉट्स आपने यूज किए होंगे बहुत बार अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस के साथ. सेम इज विद हेयर. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग. तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना विद अ फास्टर डिसीजन मेकिंग. सो इट इज लाइक अ एड ऑन सेवरल न्यू फीचर्स. यहाँ पे सेवरल न्यू फीचर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं. देन नेक्स्ट इज स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउसिंग सिस्टम. तो जो स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउसिंग सिस्टम है, दिस सिस्टम मेक्स लोडिंग, जैसे कि लोडिंग हो गया, ठीक है, लोडिंग, अनलोडिंग and tracking of containers completely automatic in warehouses near ports. So it has been introduced by CWC under Digital Transformation 2.0 to automate container and cargo handling for container freight stations and जनरल वेयर हाउसेस. ठीक है, तो सिंपल आइडिया ये है कि इसमें पहले क्या होता था कि चेकिंग करना पड़ता था कंटेनर नंबर्स के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए कि वो कहाँ पे हैं यार्ड में, नोट करना ड्राइवर एंट्री कब हुई थी, सब मैनुअल होता था. नाउ मशीन्स एंड सेंसर्स डू इट ऑटोमेटिकली, तो अलग से कुछ नहीं करना है. सो जो मेजर कंपोनेंट्स है जो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, दैट इज गेट ऑटोमेशन सिस्टम. सो इट इज इंटीग्रेटेड विद पोर्ट एंड रेल सिस्टम, जो ऑटो फेच कर लेंगे व्हीकल को और कंटेनर डिटेल्स को. यार्ड मैनेजमेंट विद डिजिटल ट्विन, वी हैव यार्ड मैनेजमेंट विद डिजिटल ट्विन. इट इज लाइक अ वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ रियल प्लेस, प्रोवाइडिंग रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंटेनर आपका कहाँ जा रहा है. इट इज लाइक क्रिएटिंग द ओरिजिनल route map for the container. Then we have smart inventory management. Smart inventory management हमारे पास है which counts and track cargo in real time, auto updates record with ERP and WMS integration. Now next is Annadarpan. Annadarpan में क्या है? It is like it has been introduced first thing by FCI, Food Corporation of India. For unified mobile first supply chain operations. So it is like a new digital system. New digital system है to manage all the food procurement, storage and movement in one place, एक ही place पे. So it is like a microservices based platform that replaces the existing depot online system. So पहले क्या होता था, जो हमारी हर एक्टिविटी होती थी related to procurement, related to storage was done in separate platform में होता था. Now everything is connected to a single platform, तो अलग अलग platform पे जाने की जरूरत नहीं है. So what are the key features जो यहाँ पे introduce हुए हैं? The first one is the mobile first design for anytime access. Mobile first design for anytime access. मोबाइल के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. स्मूथ इंटीग्रेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम फॉर यूनिफॉर्म डेटा. यूनिफॉर्म डेटा यहाँ पे है, इंटीग्रेशन है डेटा का एट सिंगल प्लेटफॉर्म. रियल टाइम डैशबोर्ड है अक्रॉस मंडीज, डिपोज, रेल हेड्स एंड ऑफिसेज. एंड सिंगल रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्लो फॉर फास्टर डिसीजंस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी. तो यहाँ पे मेनली जो काम है यहाँ पे इसका, तो वो ये है कि एफसीआई को पता लगेगा कि हाउ मच ग्रेन इन ईच मंडी इज देयर व्हेन ट्रक्स आर अराइविंग एंड हाउ मच स्टॉक इज अवेलेबल वेयर फूड नीड्स टू बी मूव्ड. ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये रिड्यूस करेगा हमारे वेस्टेज को एंड डीलेस को. नेक्स्ट इज आशा, दैट इज अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन. इट इज एन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म. किसने इंट्रोड्यूस किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, to strengthen citizens' feedback in PDS. So it is like an AI calling system that calls ration card beneficiaries to ask कि क्या आपको राशन मिला कि नहीं, क्या आपको ऑप्टिमम क्वांटिटी में मिला, कि क्वालिटी ठीक थी कि नहीं. So it is like a check if there is any problem. So beneficiaries reply in their own language and the system understands it. This is ASHA, that is Anna Sahayata Holistic AI. देन बेनिफिशरीज यहाँ पे कौन कौन है, बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या है? ये स्ट्रेंथन करेगा ट्रांसपेरेंसी अंडर फूड सिक्योरिटी एंड PMGKAY. ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारी गरीब कल्याण अन्न योजना है. देन हेल्प्स आइडेंटिफाई इरेगुलरिटीज क्विकली, enhances citizen participation in PDS, support evidence based decision making. Right, next is Yuva AI for all.
Ministry of Electronics and Information Technology has launched Yuva AI for All under the India AI mission. What is the purpose? It is a first of its kind free course that introduces the world of AI to all Indians, especially the youth. तो यहाँ पे काम क्या है, ये एक फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट टीचेस द बेसिक एआई टू एवरीवन इन इंडिया, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल. सो व्हाट इट विल टीच कि एआई होता क्या है, हाउ डज इट वर्क एंड वेयर डू वी यूज इट. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ पे सिखाएगा, दैट इज युवा AI for all. So गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री माईटी ने इसको लॉन्च किया है. ये एक फ्री कोर्स है. बेसिक एआई यहाँ पे सिखाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन थिंक ऑफ एक्ट लाइक अ ह्यूमन. एआई तो आप सबको पता ही है. देन व्हाट इज, अब इस कोर्स में होगा क्या, ये 4.5 आवर सेल्फ paced course है which is designed to make students professional and other curious learner comfortable with basic AI. Basic AI क्या होता है? It is simple, practical and filled with real life Indian examples के थ्रू इसे समझाया जाएगा. It is available for free on leading platform like Future Skills Prime, iGod, Karmyogi and other popular edtech portals. यहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे कोर्स को एंड दे विल गेट एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे 6 शॉर्ट एंगेजिंग मॉड्यूल्स हैं लाइक, एंड लर्नर्स विल लर्न व्हाट इज एआई, कैसे काम करता है, एआई कैसे हेल्प कर रहा है इन चेंजिंग एजुकेशन, क्रिएटिविटी एंड वर्क, एंड हाउ दे कैन यूज एआई safely and responsibly, explore cool real world AI uses case from India, ठीक है, to teach them, and even schools and universities can join this. Next is National Industrial Classification NIC 2025. सो हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिलीज किया है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025. ये कब रिलीज हुआ है? ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ एनएसएस दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, जो कब सेलिब्रेट होता है? 18th ऑफ नवंबर को. ये कहाँ हुआ था? एट उदयपुर. एनआईसी है क्या? इट इज़ लाइक अ बिग डिक्शनरी जो हमें ये बताता है कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन इंडिया. सो वेन एवर द गवर्नमेंट कंडक्ट्स एनी सर्वे, कलेक्ट्स डेटा, मेक पॉलिसीज और पब्लिशेस स्टैटिस्टिक्स, इट यूजेस एनआईसी कोड्स टू लेबल इंडस्ट्रीज करेक्टली, कि वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको करेक्टली लेबल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. सो इट इज़ इंडिया क्लासिफिकेशन सिस्टम. और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1962. ओके, ये 6 डिजिट कोडिंग है. 1962 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड उससे पहले कब कब हुआ है? 1970, 87, 1990, 1998, 2004, 2008 एंड नाउ इन 2025. ओके, इट रिप्रेजेंट द लेटेस्ट अपडेटेड नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो अपडेटेड क्लासिफिकेशन है सारी एक्टिविटीज़ का, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इनोवेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू सेक्टर्स, इन सबको इंक्लूड करेगा. एंड द रिवीजन reflects the major structural, technological and organizational shift in India's economy, including the rapid growth of renewable energy, fintech, e-commerce and digital intermediation. It also recognizes all the important indigenous sectors. कौन से sectors? Like आयुष based healthcare and handloom industry. और इसे prepare करता है. It is prepared by MOSPI in alignment with the international standard industrial classification of all economic activities revision 5, developed by, अब इसको कौन डेवलप करता है? It is developed by United Nations Statistics Division, that is UNSD. अभी जो रिवीजन है इट वॉज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिवीजन फॉर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. ये 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर है. तो ये कितने डिजिट्स का होता है? 6 डिजिट. और पहले ये 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये 5 डिजिट्स का होता था. राइट. नाउ व्हाट आर द सेलाइन फीचर्स? अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज दैट it is enhanced classification of intermediation service. It means better classification of intermediation service. जो new codes हैं ये ऐड करते हैं इंटरमीडियरीज को, लाइक इन पावर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, रियल एस्टेट एंड फूड सर्विसेज को. ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? कनेक्ट करता है बायर्स एंड सेलर्स को और डिलीवरी कंपनीज को टू नाउ गेट अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड ग्रीन इकोनॉमी इंटीग्रेशन. तो ये इंक्लूड करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को विच आर रिलेटेड विद कार्बन कैप्चरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल क्लीनअप. देन डिजिटल इकोनॉमी रिप्रेजेंटेशन. सो न्यू कोड्स क्रिएटेड फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, सर्विसेज, वेब सर्च पोर्टल्स, इनके लिए न्यू कोड्स क्रिएट किए गए हैं. क्लासिफिकेशन इज टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक. ठीक है, तो न्यू कोड्स क्रिएटेड फॉर
NIC जो है does not separate the industries based on whether they use modern or traditional technology. इसके basis पे उन्हें separate नहीं करता है. And classification is new technology agnostic. Right? Next, we have the National Action Plan for on antimicrobial resistance 2.0. ठीक है, अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने रिलीज किया है एक न्यू 5 year plan that is applicable from 2025 till 2029, which is called as National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2.0. It is an updated plan to fight antimicrobial resistance. ये सेकेंड प्लान है. एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्लोबल थ्रेट. इट मींस एएमआर में जो जर्म्स होते हैं, लाइक देखो एएमआर का मतलब होता है जो जर्म्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या पैरासाइट्स है, ये स्टॉप कर देते हैं रिस्पॉन्ड करना टू स्पेसिफिक मेडिकेशन. फॉर एग्जांपल आपको फ्लू हुआ है, ठीक है, आपने उसके लिए मेडिसिन लिया, एंटीबायोटिक्स लिया, बट उस एंटीबायोटिक जो वो एंटीबायोटिक है वो काम ही नहीं कर पा रही उन वायरसेस पे या फिर यू कैन से उन बैक्टीरियाज पे. क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, अब उन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. इसको ग्लोबल थ्रेट माना गया है एज अ सीरियस हेल्थ, political and economic implication, right? So if you take any antibiotic for fever or infection, अगर वो काम नहीं कर रही है, so it is considered as dangerous, so it is a big problem. क्योंकि ये मेडिसिन स्टॉप कर देती हैं काम करना, इन्फेक्शंस को और ज़्यादा टाइम लगता है क्योर होने के लिए, ट्रीटमेंट और कॉस्टली हो जाता है because stronger and expensive medicines are needed, which is also not healthy for the body. Serious medical procedures become risky, like surgeries, cancer treatment, organ transplant भी कराना पड़ सकता है, and spread to others. ये जो resistance है, resistant infection है, ये दूसरे person को भी easily spread हो सकते हैं. This is why India felt that there's a need to come with a new plan. Now, why AMR needs One Health approach? यहाँ पे एक One Health approach है जो follow की है. अब इसमें क्यों ये ज़रूरी है? Because human health, animal health, farming है, environment है, ये सब connected है. अगर हम आपने देखा होगा like even in COVID pandemic हो गया या फिर पहले जो भी pandemics हुए थे, चाहे वो चिकन पॉक्स से related हो, चाहे वो अलग फ्लूज से related हो, पहले वो एनिमल्स में स्प्रेड हुए, देन दे केम टू ह्यूमन. तो एनिमल ह्यूमंस फार्मिंग इनका एक लिंक है, ऑल आर कनेक्टेड. दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक मिसयूज कैन हैपन इन ह्यूमंस, एनिमल्स, फार्म्स, एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड. सो ये जो न्यू प्लान है हमारा, ये न्यू प्लान कब, हाउ दिस न्यू प्लान वाज मेड, देखो डिस्कशन इसके लिए स्टार्ट हुआ था इन 2022. 2022 में ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, देन फार्मिंग, इन्वायरमेंट, रिसर्चर्स, एनजीओ, सबको एक साथ लाया गया. एंड देन फाइनली नीति आयोग ने एक हेल्ड किया मीटिंग विद 20+ मिनिस्ट्रीज, एंड ईच मिनिस्ट्री मेड देयर ओन मिनी प्लान and then presented. So AMR is recognized as the national priority under Union Health Ministry that has taken several steps for AMR containment. The National Task Force on AMR Containment was constituted in 2010, leading to development of national policy on AMR containment in early 2011. अब जो अप्रैल 2017 है उसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है इन अलाइनमेंट विद ग्लोबल एक्शन प्लान विच वाज लॉन्च्ड to be implemented over next 5 years, that is from 2017 to 2021. ये तब हुआ था. And One Health approach मैंने आपको बता दिया that everything is integrated, so that's why we are covering One Health approach here. Okay, so that's all in the news, in this news. So India ने develop किया है और ये important है, national इसको ग्लोबल थ्रेट माना गया है और ये है भी, राइट. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द 4th week of November 2025. जो 4th week of November 2025 है उससे रिलेटेड है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ACI-TI partnership. So India, Australia, Canada recently agreed to enter into a new trilateral technology and innovation partnership. क्यों इन कंट्रीज को साथ में आना था? देखो फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो हमारी 3 कंट्रीज हैं, जस्ट अ सेकेंड,
ये जो तीन कंट्रीज हैं, थिंक ऑफ देम एज अ गुड फ्रेंड्स की गुड फ्रेंड्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ईच अदर टू ग्रो. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप. तो जो तीनों कंट्रीज हैं ये क्रिएट करेंगी, इंप्रूव करेंगी टेक्नोलॉजी को दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन एंड मूव टूवर्ड्स द नेट जीरो नेट जीरो कार्बन एमिशन. ठीक है, जो हमने अचीव करना था. सो इट विल ड्रॉ द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द थ्री कंट्रीज, सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स लेके आएंगे, and it will create a synergy, and it will deepen further the respective ambition and strategic collaboration towards net zero and diversification of supply chain towards secure, sustainable and resilient future. Okay, now focus, ये एक चीज यहाँ पे याद रखना, focus यहाँ पे क्या है, the focus is on clean and green energy. Next news, just transition mechanism. So at the 30th Conference of Parties in Belém, Brazil, the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, adopted a new just transition mechanism, जिसको क्या बोलते हैं, बेलेम एक्शन मैकेनिज्म, दैट इज BAM. अब ये हुआ क्यों था, देखो, इट इज ये जो COP30 है, ये एक बिग क्लाइमेट मीटिंग है जहाँ पे कंट्रीज आती हैं, न्यू सिस्टम के साथ एग्री करती हैं एंड हेल्प ईच अदर to shift to cleaner energy without hurting workers or poor communities, right? So just in transition system जो है, इसका मतलब ये होता है, we are moving from pollution and fossil fuel usage to clean energy in a fair and does not in a fair way, जिसमें हम किसी और को पीछे ना छोड़े. द परफेक्ट एग्जाम्पल इज लाइक कोल माइनिंग होता है. ठीक है, इफ यू टेक कि कोल माइनिंग एनवायरनमेंट को हैम्पर कर रहा है, उसको शट डाउन कर दिया, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसके शट डाउन की वजह से वो जॉबलेस नहीं हो जाने चाहिए, उनको कुछ ना कुछ और काम देना चाहिए. सो वी आर मूविंग टुवर्ड अ क्लीनर एनर्जी इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे. So just transition refers to the process of shifting towards a green, low carbon economy in fair, equitable and inclusive way. सबको साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना. So what are the key objectives and functions here? International cooperation, help countries work together. तो यहाँ पे कंट्रीज क्या हैं, एक साथ काम करेंगी. देन कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस, जब हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, कोहेरेंस के साथ चलेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, जो अभी चल रहा है, स्मॉल क्लाइमेट प्रोग्राम्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, एंड इट विल, ये जो मैकेनिज्म है ये हेल्प करेगा टू एक्ट एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, इन छोटे छोटे जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको कोलैबोरेट करने में. देन नॉलेज शेयरिंग, create a global platform for sharing best practices, tools and knowledge system for policy making. Then support and matchmaking, facilitate support for countries by matchmaking projects with potential funders and technology providers. And key components यहाँ पे क्या क्या included हैं, we have social protection, we have reskilling, upskilling, economic diversification and inclusive dialogues. Okay. Next news is about the Cyber Security Innovation Challenge, that is CSIC 1.0. अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज अंडर इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट ISEA. वाई? फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स हु वांट टू क्रिएट न्यू साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर इंडिया. किसी को अगर न्यू सॉल्यूशंस बताने हैं, सो इंडिया जो करंटली फेस कर रहा है, मोर ऑनलाइन थ्रेट्स फेस कर रहा है, एंड टू कीप द कंट्री सेफ वी नीड अ स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी, राइट? सो ये जो चैलेंज है ये इंकरेज करता है यंग पीपल को इन कॉलेजेस टू बिल्ड न्यू सॉल्यूशंस फॉर न्यू प्रॉब्लम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम. If you talk about the CSIC 1.0, what it do, it invites all the students and researchers, इनको invite करता है and help करता है anyone studying in colleges or doing research, or everybody can participate. So यहाँ पे जो focus domains हैं वो 10 domains हैं, और इसमें क्या क्या आता है, we have computer network security, mobile device security, system and software security, hardware security, security in futuristic technologies, cryptography, security in distributed wireless network, साइबर फॉरेंसिक्स, गवर्नेंस, ऑपरेशन सर्विसेज एंड फिनटेक सिक्योरिटी. यहाँ पे 5 स्टेज स्ट्रक्चर है. इट विल नर्चर द प्रॉमिसिंग आइडियाज फ्रॉम कंसेप्शन टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, राइट? अबाउट द ISEA प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये इनिशिएटिव है, माइटी का इनिशिएटिव है. यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं फॉर सेफ, ट्रस्टेड एंड सिक्योर साइबर स्पेस. इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय 50 प्रीमियर एकेडमिक एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, एंड यू डू नॉट नीड टू लर्न द नेम ऑफ ऑल दीज 50. ठीक है, यहाँ पे बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IITs हो गए, NITs, IIITs, CDAC, NIELT. ठीक है, सो
अगर मैं इसको एक छोटी सी समरी में बताऊं, सो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दैट to launch a cyber security competition for students to help them create new solutions for new problems to make our economy digitally secure. Next, tech stamp schemes. The government of India has approved the textile focused research assessment monitoring planning and startup scheme to make India's textile industry more modern, smart and globally competitive. So what is the outlay of the scheme? 305 crore. Duration is from 2025-26 till 2030-31. ये एक central sector scheme है. It means fully funded by the Ministry of Textile. And what are the key components? जो यहाँ पे की कंपोनेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज रिसर्च एंड इनोवेशन. तो सो प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, इट विल हेल्प सपोर्ट न्यू आइडियाज इन टेक्सटाइल, इको फ्रेंडली, मेकिंग इको फ्रेंडली टेक्सटाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स. सो हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाना है यहाँ पे. Creation of robust data system including employment, assessment, supply chain mapping and India size study to facilitate evidence-based policy making. Next is integrated textile statistical system. ये एक digital platform है जो collect करता है and analyze करता है real time data को. It will help government monitor the sector properly and plan better. Then next is कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम. सो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज. इट विल हेल्प स्टेट्स लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री. Then startup and innovation support. We have support for incubators, hackathons, and academia, industry collaborations to nurture high value textile ups and entrepreneurship. राइट. सो एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसके क्या होंगे? ये इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा इन ग्लोबल मार्केट, स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम को, इकोसिस्टम को. डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, डेटा को यूज करके हम पॉलिसी मेकिंग, बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा एंड डीपर कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. Next news is about the winners of 44th IITF. So the 44th edition of India International Trade Fair organized by India Trade Promotion Organization concluded with an award presentation ceremony. तो यहाँ पे awards मिले थे. As you can see, जो हमारे पार्ट, यहाँ पे बहुत सारे awards हैं. आप एक बार बस इसे read कर लेना. I am just reading the first one for you कि gold किसको मिला है. So partner state में we have Rajasthan, focus state में झारखंड, states and UTs में we have Odisha, thematic presentation states में मेघालय, स्वच्छ पेविलियन जो स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज हैं उसमें हरियाणा को मिला है. फॉरेन पेविलियंस वी हैव थाईलैंड, ठीक है, थाई एसएमईज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन. मिनिस्ट्रीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री पीएसयू एंड पीएसबी की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. कॉमोडिटी बोर्ड्स में टी बोर्ड को मिला है. पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच में वी हैव डीजी ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज. एम्पावरिंग इंडिया में Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Private sector में we have RDM Care, that is Ayur. RDM Care Ayur. Then food stalls में Bansal Food and Beverages and vending points में दाना पानी. Next is basic animal husbandry statistics 2025. ठीक है, तो ये जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने रिलीज किया है. दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025. ये रिपोर्ट हमें बताता है कि कितना हमने मिल्क, एग्स या वूल प्रोड्यूस किया है फ्रॉम 2024 टिल 2025 बिकॉज इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन एंड इट गिव्स इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट लाइफ स्टॉक, फार्म्स, वेटनरी सर्विसेज. एंड इट वॉज रिलीज्ड ऑन नेशनल मिल्क डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of November. ठीक है, जो रिपोर्ट है हमें बताता है कि ईयरली रिपोर्ट की हमने कितना नेशनल एंड स्टेट वाइज डेटा क्या है, ट्रेंड्स क्या है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, एग्स कितना है. दिस रिपोर्ट टेल्स अस अबाउट दैट. सो इफ यू टॉक अबाउट द मिल्क, एग, मीट एंड वूल प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, egg and meat production in 20, India is number 1 in the world in milk production. तो total milk production कितना है यहाँ पे? 247.87 million tons during 24-25. ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 239.30, registering a growth of 3.58% in 2024-25 over the previous year. Per capita availability कितना है? It has increased from 319 gram per day to 485 gram per day.
टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वी हैव यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एंड टुगेदर दे कंट्रीब्यूट अराउंड 54%. मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड केटल क्या है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है. मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम बफेलोज ऑल्सो इंक्रीज बाय 2.45%. एग प्रोडक्शन की बात करें सो इंडिया रैंक सेकेंड इन एग प्रोडक्शन ग्लोबली. टोटल एग प्रोडक्शन जो हमारा है दैट इज अराउंड 149.11 बिलियन इन नंबर्स ड्यूरिंग 24-25. सो इट हैज इंक्रीज्ड एनुअली बाय 3.18% during 2023-24 and currently 4.44% is the growth rate. Per capita availability of eggs increase हुए हैं from 62 and now to 106. टोटल एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है हमारे कौन से हैं, टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वी हैव आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका. आउट ऑफ द टोटल एग्स जो टोटल एग प्रोड्यूस किए हैं, जो कमर्शियल पोल्ट्री है उसमें से कितना कंट्रीब्यूट होता है 125.98 एंड विच इज अराउंड 84.49% ऑफ द नेशनल आउटपुट. जो तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करना, आपको बस याद करना है कि जितना भी टोटल नेशनल प्रोडक्शन है उसमें से अराउंड 85% कहाँ से आ रहा है, कमर्शियल पोल्ट्री से. मीट प्रोडक्शन में इंडिया स्टैंड्स एट फोर्थ. मीट प्रोडक्शन जो हमारा है फ्रॉम पोल्ट्री इज अराउंड 5.18% और ये भी क्या है, इंक्रीज हुआ है, रजिस्टर ग्रोथ ऑफ अराउंड 2.46%. एंड टॉप 5 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हमारे हैं दीज आर वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड टुगेदर दे कंट्रीब्यूट अराउंड 57% ऑफ द नेशनल production. Now wool production, total wool production in the country is around 34.57 million kgs. ये भी इंक्रीज हुआ है, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 2.63%. मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ का है, राजस्थान. राजस्थान से सबसे ज्यादा शेयर आ रहा है, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर. और राजस्थान से आप देखेंगे पर्टिकुलरली अराउंड 48%, ठीक है, 48%. तो फिर ऑलमोस्ट हाफ ही मान लो, ऑलमोस्ट हाफ राजस्थान से आ रहा है. देन जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड लोवेस्ट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन है हमारा उसका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आया है. सो यहाँ पे जो हमारा खारिफ प्रोडक्शन है इसमें रिकॉर्ड किया है प्रोडक्शन ऑफ मेजर खारिफ क्रॉप, ये जो भी एक्सपेक्टेड होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है एस्टिमेट हुआ है अराउंड, इंक्रीज हुआ है बाय 3.87 मिलियन टन्स और ये अब कितना हो गया 173.33 मिलियन टन्स ऑफ खारिफ फूड ग्रेन, ठीक है. तो इंक्रीज कितना है 3.87 मिलियन टन्स का एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर. राइस की अगर हम बात करें, राइस इज एस्टिमेटेड अराउंड 124 मिलियन टन्स, ये भी इंक्रीज हुआ है. तो जो हमारा फूड ग्रेन है, टोटल फूड ग्रेन है वो भी इंक्रीज हुआ है. देन राइस भी इंक्रीज हुआ है. देन मेज also increased from past year. कितना increase हुआ है 3.495 million tons. Then core cereals में अगर हम देखें so it is around 41.414 MT. It includes all the jowar, bajra, ragi and other core cereals. Pulses वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पल्सेस का याद रखें. पल्सेस में जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज अराउंड 7.413 मिलियन टन्स फॉर 2025-26 एंड इसमें भी जो प्रोडक्शन ऑफ तूर है, तूर, उड़द, मूंग और मसूर जो है इसका इंपॉर्टेंट होता है. सो अरहर दैट इज अराउंड 3.579. तो जितना टोटल प्रोडक्शन है उसमें से आधा प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है, अरहर वाली दाल से, अरहर पल्स दैट इज प्रोडक्शन ऑफ तूर. देन उड़द से आ रहा है, दैट देन मूंग से आ रहा है दैट इज अराउंड 1.720. देन उड़द से तो हाईएस्ट इज तूर, देन मूंग एंड देन फाइनली उड़द. ओके, एंड ऑलमोस्ट हाफ कहाँ से आ रहा है, तूर दाल से. टोटल खारिफ ऑयल सीड प्रोडक्शन जो हमारा है इट इज अराउंड 27.563 MT, जिसमें से जो ग्राउंड नट है हमारा, ग्राउंड नट दैट इज अराउंड 11.093. सो ऑलमोस्ट हाफ कहाँ से आ रहा है, हमारा ग्राउंड नट से आ रहा है. और जो बाकी बचा हुआ है दैट इज अराउंड 14.266, ठीक है, जो हमारा सोयाबीन से आ रहा है. सॉरी, ऑलमोस्ट हाफ जो हमारा सोयाबीन से आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 14 है, उसके बाद ग्राउंड नट से. देन शुगर केन प्रोडक्शन, ये क्या है, इंक्रीज हुआ है बाय 20, इंक्रीज ऑफ 21 MT कंपेयर टू लास्ट ईयर. कॉटन प्रोडक्शन भी क्या है, मिलियन बेल्स में है. वेइंग जो एक बेल होता है वो 170 किलोग्राम्स का है. तो कॉटन टोटल प्रोडक्शन कितना है 29.215 मिलियन बेल्स.
Production of Patson and Mesta, it is estimated around 3.458 million bales. ठीक है, पैथसॉन का मतलब होता है जूट, याद रखना, ठीक है, जूट होता है इसका मतलब. नेक्स्ट इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स. तो जो गवर्नमेंट है इन्होंने अप्रूव की है न्यू स्कीम. न्यू स्कीम का नाम क्या है? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर earth permanent magnets. It is first of its kind initiative to establish what 6,000 metric tons per annum of integrated rare earth permanent magnet मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स में यूज होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस सिस्टम. एंड करंटली इंडिया जो है इंपोर्ट करता है इन मेजर मैग्नेट्स को. तो नाउ दिस स्कीम विल हेल्प make India to help India make these magnets at home. It means domestic production हम यहाँ पे increase करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो demand है almost double हो जाएगी by 2030. So the total financial outlay of the scheme is around 7280 crore. Sales linked incentives जो यहाँ पे होंगे that is around 6450 crore for 5 years of sale. Capital subsidy मिलेगी around 750 crore for setting up 6000 MTPA of manufacturing facilities. यहाँ पे जो total capacity है, envisions the allocating the total capacity to 5 beneficiaries through global competitive building process. 5 beneficiaries के लिए होगा. Duration 7 years है scheme. 2 year का gestation period है for setting up the integrated manufacturing facility. And 5 years for incentive disbursement. Next news is about National AIDS Control Program, NACP. So World AIDS Day is a global observance that is held on 1st December every year. ये 1st December को observe किया जाता है. The purpose is simple: to spread awareness about HIV and AIDS and support the people living with HIV and remember those who died because of HIV and show that fight against HIV is a shared global responsibility and not just responsibility of any one country. So to raise awareness about the epidemic. Then background was first marked in 1988 by WHO. एंड सिंस देन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, यूनाइट करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द HIV एंड एड्स. व्हाट इज द थीम फॉर 2025? ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन, transforming the AIDS response, and it is not only to preserve but also to transform our lives with this. India marks the World AIDS Day and it is led by National AIDS Control Organization, NACO, under the Ministry of Health and Family Welfare. If you talk about the India's journey, initial phase में from 1985 till 1991 यहाँ पे focus था on identifying HIV cases, ensure safe blood transfusion and generating targeted awareness. क्योंकि यहाँ से मेजरली क्या है, जो HIV है स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी रखता था. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंस था यहाँ पे HIV का. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 0.33% in 2010 to 0.20% in 2024. दैट मार्क्स अराउंड 0.7%. जो हमारा 0.7% है ग्लोबल एवरेज, उससे बहुत ज़्यादा क्या है, लोअर है. दिस इज मच लोअर देन दी ग्लोबल एवरेज दैट इज अराउंड 0.7%. देन यहाँ पे एक स्टीपर डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम 1.25 लाख न्यू इन्फेक्शंस इन 2010 to 64,500 in 2024. 49% रिडक्शन यहाँ हमें देखने को मिला है फ्रॉम द बेस लाइन. एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 5% टू ग्लोबल न्यू इन्फेक्शन. तो यहाँ पे ग्लोबली जितने भी न्यू इन्फेक्शंस होते हैं उसमें से 5% क्या है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करता है. नाउ डेथ्स की अगर हम बात करें, देयर हैज बीन फॉर 81.40% रिडक्शन फ्रॉम 1.73 लाख डेथ्स टू 32,200 इन 2024. तो 81% रिडक्शन देखने को मिला है हमें डेथ्स में. एंड ये इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्सपैंडेड फ्री ART. जो हम फ्री ART कर रहे हैं या फिर ART डिटेंशन के लिए जो वायरल सेपरेशन रेट्स हैं उनको हमने कम किया है. जो ग्लोबल फिगर्स है, फिगर फॉर ग्लोबल डेथ, that is around 6,30,000 in 2024 dwarfs India's 2024 figure. ठीक है, तो India is total representation is 5% in global death. And this disparity highlights what India का जो superior outcomes हैं driven by affordable generic drug production, उसने इसमें बहुत help की है. ठीक है, सो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की अगर हम बात करें, ये इवॉल्व हुआ है 5 फेजेस में. 5 फेजेस कैसे हैं? जो फर्स्ट वन आया दैट इज NACPI 1992 till 1919, इंडियाज फर्स्ट फुल प्रोग्राम टू फाइट HIV. इसमें जो एम था गवर्नमेंट का वो क्या था कि हम कैसे स्लो करेंगे स्प्रेड को, जो स्प्रेड हो रहा है उसको कैसे स्लो करना है, रिड्यूस करेंगे इलनेसेस को,
एंड डेथ्स को, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस था। देन एनएसीपी फ्रॉम 1999 टिल 2006, यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स पे गवर्नमेंट का फोकस था, दैट इज reducing HIV spread and build strong national capacity so India can handle HIV in the long run. Then NACP 3 that is from 2007 till 2012, इसका मतलब क्या था, गोल यहाँ पे था हॉल्ट करना और रिवर्स करना HIV एपिडेमिक को बाय 2012, फोकसिंग ऑन व्हाट, हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं या फिर जनरल पॉपुलेशन है उनको कैसे प्रिवेंट करना है, एंड स्टार्ट करना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट. Now next is NACP 4 that is from 2012 till 2017. यहाँ पे गोल क्या था, to accelerate the reversal of the epidemic and ensure integrated response. की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या थे कि हमें 50% रिडक्शन करना है न्यू इन्फेक्शंस में एंड प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल PL HIV. Now it extended from 2017 till 2021 and then advanced to ending AIDS by 2030. Currently जो मेजर इनिशिएटिव यहाँ पे थे दैट इज HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल लिविंग विद HIV. तो जब भी किसी को HIV होता है द मेजर प्रॉब्लम इज कि उसको सोशली हम अलग कर देते हैं, मतलब जो हमारी सोसाइटी में चलता है कि इट इज ट्रीटेड एज अ टैबू, राइट. एंड मिशन संपर्क, इट इज purpose is to bring back the people living with HIV who had stopped एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो ART थेरेपी है उसको जिन्होंने रोक दिया उनको ट्रेस करना एंड री एंगेज करना, लॉस टू फॉलो अप, टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी इनिशिएटिंग ART फॉर ऑल डायग्नोस केसेस, ये इनको फॉलो करना एंड रूटीन यूनिवर्सल वायरल लोडिंग मॉनिटरिंग करना कि कितना लोड है. फ्रॉम 2021 टिल 2026 जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च हुई है दैट इज अराउंड विद आउटले ऑफ 15,472 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली मान लो, एंड ये फेज 5 है जो किस पे एम कर रहा है, टू बिल्ड ऑन पास्ट अचीवमेंट एंड एड्रेस द परसिस्टेंट चैलेंज जो यहाँ पे रहे हैं. कैसे ये हेल्प करेंगे, स्मार्टर प्रिवेंशन के साथ, इजी टेस्टिंग के साथ, वाइड ट्रीटमेंट एक्सेस, जो ट्रीटमेंट है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, कम्युनिटी लेड सपोर्ट एंड फोकस ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, इसके थ्रू वी कैन अचीव. Next is the quarterly estimates of GDP for second quarter for 2025 till 2026. So आपके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है so that आपको इतना हैवी डेटा याद ना करना पड़े, आप जस्ट जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ें, राइट. So the quarterly estimates of GDP for quarter 2 2025-26 the government ने रिलीज किया है किस पीरियड के लिए, जुलाई टू सितंबर 2025. ओवरऑल जो है इंडिया की इकोनॉमी जो इस एस्टिमेट में निकल के आई है, द मैसेज, इंडियाज इकोनॉमी ग्रू फास्टर दिस ईयर कंपेयर टू द सेम टाइम इन द लास्ट ईयर. पिछले साल से ज़्यादा अच्छे से हमने ग्रो किया है. रियल जीडीपी की ग्रोथ को अगर हम देखें, सो रियल जीडीपी मींस जीडीपी आफ्टर रिमूविंग ऑल द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ये कैसे ग्रू हुआ है, 8.2% एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.6% था. देन वी हैव नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है. नॉमिनल जीडीपी 8.7% है इन दिस. एंड जो सेक्टर्स है जिन्होंने ये ग्रोथ पुश किया है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज. ग्रोथ इज अराउंड 8.1%. इनसाइड दिस मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% है, कंस्ट्रक्शन में 7.2%. ये दोनों ही बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हुए हैं, कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में. टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें द ग्रोथ इज अराउंड 9.2%. एंड इसमें भी जो टर्शरी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ने कंट्रीब्यूट किया है 10.2% और ये मेजर ड्राइवर रहे हैं इस ग्रोथ के. एग्रीकल्चर में द ग्रोथ वॉज मॉडरेट, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में 3.5%, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस में 4.4%. ठीक है. और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हुई है ये स्लोअर है कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. देन प्राइवेट कंजम्पशन, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन स्पेंडिंग डन बाय पीपल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कितना स्पेंड किया है. तो जो रियल PFCE है ये ग्रू हुआ है 7.9% से एंड लास्ट ईयर ये अराउंड 6.4% था. इट मीन्स कि लोगों ने ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया है विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. जीडीपी एंड जीवीए नंबर्स, रियल जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे इन Q2 2025-26, ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, 48.60 लाख करोड़ एंड इन 24-25 इट वाज 44.94 लाख करोड़. ग्रोथ इज अराउंड 8.2%. नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे
Q2 2025-26 85.25 lakh crore, Q2 2024-25 78.40 lakh crore. Growth rate is around 8.7%. रियल जीवीए शो करता है कि कितनी वैल्यू ऐड की है सारे सेक्टर्स ने. सो रियल जीवीए Q2 25-26 44.77 lakh crore. Real GVA Q2 24-25 41.41 lakh crore. There is a growth of around 8.1%. Nominal GVA Q2 में it was 77.69 lakh crore. 24-25 में 71.45 lakh crore. Growth rate overall is 8.7%. एंड फर्स्ट हाफ की बात करें, जो सिंपल रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स डाले, जो फर्स्ट हाफ है रियल जीडीपी ये कितना है 8% ग्रोथ रेट यहाँ पे शो हुई है. नॉमिनल जीडीपी 8.8%, रियल जीवीए 7.9%, nominal GVA 8.8%. Okay, so that's all in today's class. I hope this class was useful and it is very important for the upcoming examination, whether it is RBI, SEBI or NABARD. You can just go through the classes and you will find it that it is very beneficial for your upcoming examination, because it is the these are the recent news that you need to cover for the examination. Okay, so thank you everyone, and I'll see you in the next session. Till then, goodbye and take care.